Hello students, how are you? Today we shall start our next lecture, and in this lecture we shall start our second lesson, The Diamond Necklace by Guy de Maupassant. In this chapter we see how Mathilde, because of her over ambitious nature, suffered a lot in her life. So, you can see here the characters of this chapter, who are M. Loisel, who is a little clerk in the Ministry of Public Instruction. Then Mathilde, she is wife of M. Loisel, and then Jeannie Forestier, who is a very good friend of Mathilde. Now we start our explanation. You can see here the first para. She was one of those pretty charming young girls. Up to the last one, they all desire. So, I will start the explanation of these paras. Mathilde was very pretty and charming, but by misfortune, she was born into clerk's family. She belonged to a middle class family. She allowed herself to marry to a little clerk as she had no dowry to give. But she was very ambitious lady and she was totally unhappy with her life, as she felt herself born to enjoy all luxuries. She did not like her poor dwelling, bare walls, shabby chairs, ugly curtains in her house, a big reception hall. She hoped. She was totally unhappy with her dwelling, with her living, with her poverty, and she hoped to have a big house, having very costly curtains, a big reception hall with silk curtains, classy cabinets, priceless things, a very good reception room where she could sit with her rich, intimate friends. यहाँ हम देखते हैं कि मैथिल्ड जो थी वो एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही ग्रेसफुल एक लेडी रही, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका जो जन्म था वो मध्यम वर्गीय परिवार में होता है, और चूंकि वो मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखती थी, तो होता ये है कि उसके पास देने के लिए न दहेज होता है, न उसके पास कुछ ऐसे अच्छी वैल्यूएबल चीज़ें होती है, जिसकी वजह से वो बाध्य हो जाती है, मजबूर हो जाती है कि वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली में शादी करे। और उसके हालांकि वह एक बहुत महत्वाकांक्षी लेडी रहती है, उसकी भी इच्छा होती है कि उसके पास भी एक बहुत बड़ा सा घर हो, उसमें अच्छे भारी भरकम से पर्दे हों, अच्छी अच्छी पेंटिंग्स हों, अच्छी दीवारें हों जिसमें अच्छी पेंटिंग्स टंगी हुई हों, उसके घर में बेशकीमती वस्तुएं हों, और इन सब के साथ वो कुछ अच्छा चाहती है, लेकिन होता यह है कि उसकी जो महत्वाकांक्षा है वो पूरी नहीं हो पाती। अब बेटा सेकेंड पैरा देखिए, वैन से लेकर पेज नंबर 7 पे, शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, ट्रू आई नेवर थॉट ऑफ इट, बट हर हस्बैंड वॉज वेरी कंटेंट एंड गुड पर्सन. He liked his small home, food cooked by Mathilde, and his cheap furniture, etc., etc. He was not as ambitious as Mathilde was.
But Mathilde was over ambitious. She had a friend who was very rich. One evening, her husband came home with an invitation of a ball at Madame George's Rampagno. Thinking that Mathilde would be happy to see that, but Mathilde got irritated and complained that she had nothing good to wear in the party, and she started weeping. Seeing that, Loisel gave her 400 francs for buying a good gown for the party, and for the ornaments, he suggested her to go to her friend Madame Forestier and borrow ornaments for the party. On this idea, she got very happy, and they had a conversation on this that you can see from page number 6 to page number 7. मैडम लॉयसेल का जो पति होता है, मिस्टर लॉयसेल, वो काफ़ी भला व्यक्ति रहता है. उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है कि उनका घर छोटा है, उसको अपने पत्नी के हाथ का पका हुआ खाना ही पसंद था, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है. अब एक दिन उसका हस्बैंड एक मिनिस्ट्री ऑफ जो पब्लिक इंस्ट्रक्शन है वहाँ के एक मिनिस्टर के यहाँ का एक इनविटेशन कार्ड लेकर आता है, लेकिन ये सोचकर कि मैथिल्ड उसको देख के खुश हो जाएगी, बट होता विपरीत है. जैसे ही मैथिल्ड वो इनविटेशन कार्ड देखती है तो वो पहले तो इरिटेट हो जाती है और बाद में रोने भी लगती है. इसको बहुत सरप्राइज होता है. वो पूछता है कि क्यों रो रही हो, तो ये कहती है कि ये जो कार्ड लेकर आए हो इसका मैं क्या करूं, मेरे पास पार्टी में पहनने के लिए ना तो अच्छे कपड़े हैं ना अच्छे गहने हैं. वहाँ सब अच्छी अच्छी लेडीज आएंगी, बड़े बड़े घरों की लेडीज आएंगी, क्योंकि एक वो मिनिस्टर के घर की पार्टी होती है. तो वहाँ मैं ऐसे साधारण से कपड़ों में जाऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा. तो उसको ये प्रॉब्लम थी. अब लॉयसेल तो इस बात पे विचार नहीं कर पाता था, उसने नहीं कर पाया इस बात पे विचार, तो अब उसको भी अफसोस होता है इस चीज का. तो यहाँ उस बहुत अच्छा बताया गया है लॉयसेल को, उसके पति को. उसने कुछ अपने पास से 400 फ्रैंक्स बचाकर रखे हुए थे. वह कहीं शिकार पे जाना चाहता था और उसके लिए अपने लिए गन लेना चाहता था, शिकार के लिए पिस्तौल खरीदना चाहता था. तो अब वह उस पैसे को मैथिल्ड को दे देता है, यह बोलकर कि इससे तुम कोई अच्छा सा गाउन खरीद लो, इवनिंग गाउन, ताकि वो पार्टी में पहन सके. ये देखकर तो मैथिल्ड थोड़ी देर के लिए खुश हो जाती है, लेकिन फिर बाद में वो फिर उदास हो जाती है. तो फिर ये परेशान होता है. तो वो बताती है कि उसके पास वहां पार्टी में पहनने के लिए गहने भी नहीं है. तो वो उसको सजेस्ट करता है कि अभी मार्केट में, अभी फैशन में कुछ नेचुरल फ्लावर्स ही चल रहे हैं, तो उसके तुम कुछ गहने पहन सकती हो. लेकिन मैथिल्ड उससे संतुष्ट नहीं होती है. उसे लगता है कि वो बहुत साधारण दिखेगी, क्योंकि रिच फैमिलीज की जितनी भी लेडीज आएंगी वो तो अच्छी गहने पहनी हुई होंगी. अब यहाँ फिर लॉयसेल उसको सजेस्ट करता है कि तुम्हारी जो रिच फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टियर, तुम क्यों नहीं उसके पास चली जाती और कुछ गहने उससे उधार ले लेती. मैथिल्ड को ये आइडिया पसंद आ जाता है, वो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है. अब बेटा पेज नंबर 6 में हमने जो छोड़ा था, 7 से लेकर यहाँ पर 8 पेज नंबर तक आप ये पैरा देखिए. देखिए यहाँ पर मैंने मार्किंग की है. हाउ इम्पॉसिबल तक, यहां तक का एक्सप्लेनेशन आप सुनिए. नेक्स्ट डे शी वेंट टू फॉरेस्टियर एंड टोल्ड हर प्रॉब्लम, एंड फॉरेस्टियर हेल्प्ड हर by giving a diamond necklace. She felt very happy and fared at the party. She was looking prettier than any other woman present there. All the men in the party wanted to know her name, dance with her. Even minister also remarked her. She danced the whole night with full of joy. She danced up to 4 o'clock in the morning and came back to her home. But when she went to change her dress,
she found that necklace was not there on her neck. She got shocked to see. She told her husband. He was also very shocked. He got very shocked. यहाँ बेटा ये मैडम फॉरेस्टियर के यहाँ जाती है, उससे अपनी परेशानी बताती है, थोड़ा हेजिटेट होते हुए भी बताती है, क्योंकि ये महत्वाकांक्षी के साथ साथ थोड़ी आत्मसम्मान भी था, स्वाभिमानी भी थी, लेकिन फिर भी अब उसकी परेशानी थी, मजबूरी थी, इसलिए वो उसके पास जाती है और उससे अपनी परेशानी बताती है। उसकी फ्रेंड रहती है, बेस्ट फ्रेंड, तो उसको सहर्ष मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके पास जितने भी गहने होते हैं वो उसको दिखाती है कि तुम्हें जो चाहिए वो लेकर जाओ। मैथिल्ड सब गहनों को छूकर पहनकर देखती है और उसके बाद उसे एक डायमंड नेकलेस पसंद आ जाता है वहां पर, और वो डायमंड नेकलेस लेकर वो पार्टी में जाती है। पार्टी में खूब डांस करती है, खूब अच्छी शानदार पार्टी रहती है और उसमें मैथिल्ड सबसे सुंदर दिखाई देती है। पहले ही वो बहुत प्रिटी और चार्मिंग थी और अब उसका एक नया सा गाउन और उस पर से वो डायमंड नेकलेस, तो वो बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही थी। हाँ, वहाँ हर व्यक्ति इसकी प्रशंसा कर रहा था, हर कोई इसके साथ डांस करने के लिए, नाचने के लिए, नृत्य करने के लिए उत्सुक था और यहाँ तक कि मिनिस्टर भी उसको देखकर प्रशंसा कर रहा था, यानी ये उसके लिए एक बड़ी बात थी। अब ये लोग जैसे ही पार्टी खत्म होती है, पार्टी सुबह तक चलती है, ये रात भर डांस करती है और सुबह 4 बजे तक डांस करती है। उसके बाद ये लोग सुबह वापस घर आते हैं और ये बहुत खुश थे उस दिन। और जैसे ये घर आते हैं और ये चेंज करने के लिए जाती है तो वहाँ आईने के सामने ये देखती है कि इसका जो नेकलेस है उसके गले से गायब है। उसके तो होश उड़ जाते हैं। ये देखते ही वो अपने हस्बैंड को, लॉयसल को आवाज़ देती है, चिल्लाती है और उसका हस्बैंड भी भौचक्का रह जाता है। क्योंकि ये लोग मिडिल क्लास फैमिली से थे और वो डायमंड नेकलेस तो बहुत बड़ी चीज़ थी और उसका गुम हो जाना इनके लिए तो किसी शौक से कम नहीं था। Yes, now you see on page number 8 and 9. Yes, there is marking para number 4. Here also up to 36,000 francs. So explanation of this. They searched it in the folds of her skirt, of her cloak, in her pocket, everywhere, but they did not find it. Loisel went to police headquarters, to the newspaper offices, to offer a reward also, went to the cab companies, everywhere he hoped to find it. But at the end of the week, they lost all hope. They did not find the necklace. Finally, they decided to replace that ornament by their luck. They got a similar one from one jeweler, which cost 36,000 francs, which was a huge amount for them. But they had to buy it because it was their liability. And they purchased it, and for that they had to arrange the money, and Loisel already had 18,000 francs which his father had left for him, and the rest amount he borrowed from the market and other persons. Thus they arranged the amount for the necklace, which cost 36,000 francs. Now you can see page number 9 and page number 10. This is the last para, 5th one. Madame Loisel returned that necklace to Madame Forestier. Now they had to pay that loan taken for the necklace. They had to remove their servant. Mathilde had to do household work herself, which she was not used to do. They had to live in a one room. Loisel also worked in the evening making up tradesman account, and at night also he copied manuscript. Thus they both worked hard and saved sou by sou, means
as much as money they could, they saved it. They earned money to pay the borrowed amount, and it took 10 years, exactly 10 years, to repay the amount. Now Mathilde grew old, looked old. She had become impoverished household woman. Her beauty and charm also fade away. One Sunday, what happened? When she had gone to take a walk, she saw her old friend Madame Forestier. Forestier did not recognize her, as she got very old because of the circumstances. But Mathilde recognized Forestier, as she was still young, charming and beautiful. She told her about herself, that I am Mathilde, etc., etc. She got shocked on seeing that her friend got so old and dull only in 10 years. Now Mathilde decided to tell her about necklace. Till now she did not say anything to her. She just returned that necklace to her and came back. And after that she never met her. After 10 years she met her old friend. Now she decided to tell her everything about that necklace and her sufferings. When Forestier came to know that Mathilde suffered a lot because of that necklace, she got very surprised and felt very sorry also. Why? Because her diamond necklace was fake and of cost only 500 francs. You all got also shocked, I think. Yes, only 500 francs. And they purchased this from jeweler in how many francs? 36,000 francs. It was a very huge amount for them to repay, isn't it? So, what conclusion can we take out from this chapter? Only this: in the story we came to know that Mathilde's over-ambitiousness made her suffer very much. Has suffered a lot. यहाँ पर हम देख रहे कि कैसे एक नेकलेस की वजह से और मैथिल्ड की अति महत्वाकांक्षा की वजह से उसको कितने साल तक और शायद बाद में भी परेशानियां उठानी पड़ी और पड़ेंगी। यहाँ पर हम 4th और 5th लेसन पैरा का जो एक्सप्लेनेशन इन हिंदी कि यहाँ हमने देखा कि उन्होंने बहुत ढूंढा नेकलेस को, लेकिन उनको कहीं वो नेकलेस मिला नहीं। सब जब उम्मीद खो दिया उन्होंने, तो फिर उन्होंने निर्णय लिया कि एक दूसरा ही नेकलेस हम लेकर रिप्लेस करके उसकी जगह पे फॉरेस्टियर को दे देते हैं, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि कब किसी का डायमंड नेकलेस लिया है तो उसको वापस करना है, क्योंकि कीमत बहुत थी। तो यहाँ उन्होंने वो नेकलेस को 36,000 फ्रैंक्स में खरीदा और वो 36,000 की रकम लॉयसेल ने किस तरह से उसकी व्यवस्था की, वो उसमें 18,000 फ्रैंक्स तो उनके पिताजी ने उसके लिए वसीयत में छोड़ा था या उसके लिए छोड़ा था अपने मरने के उपरांत, और बाकी के जो 18,000 फ्रैंक्स थे उन्होंने बाजार से ऊंची ब्याज दर की रकम पर और किसी से उन्होंने ये सब लिया था। तो अब यहाँ पर वो तो ठीक है, उन्होंने वो बोरो जो किया था वो नेकलेस वापस किया, लेकिन अब ये जो अमाउंट है अब इसको रीपे करना था। अब इसको रीपे करने के लिए वो जिस घर में रहते थे उस घर को उन्होंने छोड़ा, एक छोटा सा 1 कमरे का मकान किराए पे लिया, अपना जो वो सर्वेंट था उसको भी नौकरी से हटा दिया। अब मैथिल्ड को पूरे काम घर के खुद से करने पड़ते थे। अब वो जितनी सुंदर थी अब वो सुंदरता उसमें नहीं रह गई। घर के काम कर करके वो समय से पहले बूढ़ी दिखने लगी, चिड़चिड़ी हो गई। और यहाँ पर लॉयसेल को भी बहुत मेहनत करनी पड़ी, दिन में भी काम करता और रात में भी वह ओवर ड्यूटी करता, ओवर टाइम करता, और इस तरह से पैसा जोड़ कर उन्होंने जितना भी पैसा बाजार से ऊंची दर पे उठाया था, लोगों से लिया था, जिस तरह से भी उन्होंने व्यवस्था की थी 18,000 फ्रैंक्स की, वो उन्होंने 10 साल में किसी तरह से चुकता की, वो वापस की। अब इसके बाद उनको काफी रिलैक्स फील हुआ
ऐसे ही एक दिन, लेकिन इसके साथ हुआ ये कि जो मैथिल्ड थी वो समय से पहले ही बूढ़ी हो गई। वो जो सुंदरता थी वो खत्म हो चुकी थी। कभी कभी मैथिल्ड अपने पुराने जमाने के बारे में, पुराने समय के बारे में सोचा भी करती, उस पार्टी के बारे में सोचती। और हम ये भी सोच सकते हैं कि यदि वो दिन नहीं आया था इसकी लाइफ में तो इसकी लाइफ शायद इतनी तो बुरी अभी नहीं हुई होती जो अभी हुई और जो इनको सफर करना पड़ा। अब यहाँ पर एक दिन होता यह है कि मैथिल्ड थोड़ा सा सैर के लिए निकलती है, तो उसकी मुलाकात नहीं, वो उसको देखती है, उसके एक फ्रेंड जो मैडम फॉरेस्टियर थी वो दिखाई देती है। मैडम फॉरेस्टियर तो इसे नहीं पहचान पाती, लेकिन ये मैडम फॉरेस्टियर को पहचान लेती है और अपना परिचय देती है। परिचय देना पड़ता है, क्यों? क्योंकि यह समय से पहले बूढ़ी दिखने लगी थी और चेंज हो चुकी थी, तो मैडम फॉरेस्टियर उसको पहचान नहीं पाई। अब मैडम फॉरेस्टियर को जब वो बताती है कि ये जो मेरे साथ हुआ है ये सब उस डायमंड नेकलेस की वजह से हुआ है, तो मैडम फॉरेस्टियर आश्चर्यचकित हो जाती है कि भाई ये कैसे, मेरे डायमंड नेकलेस की वजह से तुम ऐसी कैसी हो गई। तब वो बताती है कि तुमसे जो मैंने बोरो किया था डायमंड नेकलेस, वो डायमंड नेकलेस मेरे से खो गया था। मैडम फॉरेस्टियर पूछते पर तुमने तो मुझे वापस किया। तो बोले हाँ मैंने वापस तो किया, लेकिन वो मैंने दूसरा रिप्लेस करके वापस किया, खरीद कर वापस किया, वो तुम्हारा नहीं था, तुमने अब तक देखा ही नहीं। उसको आश्चर्य होता है। वो बोलती है नहीं मैंने तो नहीं देखा, लेकिन वो तुमने ऐसा किया क्यों, और वो कितने में खरीदा था, वो उसको कीमत भी बताती है। तो मैडम फॉरेस्टियर को बहुत दुख होता है, उस पर दया भी आती है और वो उसको बताती है मैडम लॉयसेल को कि वो तो एक नकली हार था, सिर्फ 500 फ्रैंक्स का था, तुमने उसके लिए अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। उसको भी अफसोस होता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। मैडम लॉयसेल की जो अति महत्वाकांक्षा थी उसने उसको सब ये चीज़ें सफ़र कराई। इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मैडम लॉयसेल की जो ओवर एम्बिशियसनेस है ये उसकी पूरी लाइफ में सफरिंग का कारण बन जाती है।